author, TED speaker, memory and mindset coach, public speaking trainer, to name a few. Special focus on how not to forget and unique mindset coaching to induce confidence on stage makes his training class apart. Today, he's going to deliver a talk on student empowerment, Mind Your Mind for Success. Now, I would request our Principal Sir, Major General Gurcharan Singh Lamba, to formally welcome our guest. Over to you, sir. Thank you, Dr. Glenn. Very good morning to all the participants. It's my pleasure to invite Mr. Bhaumik Sen, who does not need any introduction. The name itself is well known and speaks for itself. I welcome Mr. Bhaumik Sen and thank the Computer Science and Engineering Department to organize this very important topic, irrespective of which branch a student is pursuing his studies. It is imperative for everyone. Just by merely getting college degrees, university degrees, doing PhD does not make a person successful. What is important is how well that person is able to apply his knowledge into the practical field, the practical problems which come in your way, how well the person can articulate his views, how confidently he can convey his views. So all the things which are not related with your degree, basically your confidence, which includes the body confidence, language control, the mindset itself, and the ability to convey successfully, connect to the audience, know the audience, can actually make a person successful in whichever field, whether it is a manager, a leader, an army officer, and everywhere. This is very important. And it is not that a person is born with every quality. There are certain qualities a person is born with, but these are the qualities. Training your mind, training yourself, building up your confidence. These are things which are trainable qualities. One has to be aware of himself or herself, appreciate the other person to whom he is required to connect, and then make use of all that is available with his wisdom, with his body, with his language control, so that he is able to connect to the audience, connect to the team in which he or she is leading, and meet the goals of the organization. Mind is such an entity which is possibly, if we say it is few grams of gray matter, which is organized in two sides, left and the right side. And what I have read is that a normal human being is able to activate about 8 to 10% of the mind cells only. That means throughout his life, the person is using only approximately 10% of his capabilities. God has given everyone possibly equal amount of gray matter. How well that gray matter is lit, how well the information is recorded, and how fast and how effectively a person is able to retrieve that information is a very scientific method. This is the information age, and you as the engineering students
Do a lot of research on cloud computing, data mining, and other techniques. Mind is something which one has to actually do a lot of introspection and train yourself to get into all these techniques. Maybe there for computers, but for yourself, the methodology of applying these techniques is different. I have actually heard some of the addresses given by Mr. Bhomik Sen on the YouTube, and I'm sure that the session today is going to be very interesting and very enlightening for you. So keep your hearing, sense, and your eyes totally focused on the today's proceedings. Enjoy his talk and learn the maximum from his talk so that you are able to draw the planned benefit out of this session today. With this, I once again welcome Mr. Bhomik Sen for the session today, and I myself would be looking forward to interacting with him in today's session, and I'm happy to see at least there are 3 digits in the attendance. Hopefully, some of them, those who are missing, would be joining during the session. Wish you all the very best and hope that you learn the maximum, connect to him, because he will connect to you very effectively. That I'm very certain. So wish you all the very best, and once again welcome all participants on this very important webinar. God bless you. Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Amanpreet Singh Sethi, Dean Student Affairs, to address and share his views with the students. Thank you, Gulin. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah, thank you. So, on the onset, I would like to thank our worthy principal, Major General Dr. G.S. Lamba, VSM, for providing us consistent motivation to conduct such webinars continuously. Congratulations to the head and whole team of CSC department for organizing a webinar come motivational talk on such a wonderful and important topic, mind your mind. We all are primarily made up of a physical body, a soul, and a mind. Some actions of our body are controlled by our brain, and some are controlled by. I'm getting echo. Some actions of our body are controlled by our brain, and some are controlled by our mind. But primarily, our body behaves according to the state of our mind. A happy and stable mind gives us a healthy body. And in these times of uncertainties, the mind is very stressed and it may lead to some lifelong diseases like hypertension, diabetes, or so because of that condition of mind only. So if this mind can be controlled, I'm sure the hidden behavior of body can also be controlled. And this is what our today's distinguished speaker, Mr. Bhomik Sen, is going to tell us, that how can we mind our mind to unleash the inner super learner. So not being a barrier between today's session and you all, I'll wind up my this speech to this much only, and wish you all the best. I hope we all will be benefited with the Mr. Bhomik's session today. Thank you very much. Thank you very much, sir. And now I would request Mr. Bhomik Sen, our distinguished guest speaker, to start with his expert talk. Over to you, sir. All right. Thank you so much, Gurleen, for kicking off the proceedings over here. I would really like to thank Dr. Kamalveer Singh, with whom I had that interaction over LinkedIn. I would like to thank Mr. Amanpreet, Dr. Lamba as well, for organizing this particular event for the benefit of students. Really thank you from the bottom of my heart. And sabnu sat sri akal mere wallo.
right? I am a Punjabi, although my name does not looks like one, but then, I just want to clear that particular thing. People often, mistaken me for a bong probably. So I just wanted to make it very, very much clear at the right fact start of that, right? Although that does not matters, but then yes, that helps me to connect to the audience pretty well, right? And I would really like to thanks all the audience over here who have taken out this 60 minutes of their precious time, I would say, in attending this webinar. आप लोग कुछ भी कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, आपके पास चॉइस थी, आप ये 60 मिनट कहीं और भी अपने इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ लगा सकते थे, बट कंसिडरिंग आप इस वेबिनार में आए हैं यहाँ पे, आई रियली थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल मेक इट श्योर दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. ऑलराइट, सो before I start, I would really like to thank all the teaching fraternity specifically, considering the kind of the way they have adapted themselves to this new normal. Considering they were always those old school ways of teaching, or I would not say old school, but then the regular ways of teaching. But then we as teachers and we as students as well have adopted really well to this new normal. And I would like to congratulate and thank you all for this tireless service, I would say, to the society. With that, I would be sharing my screen, and Gurleen, I would be asking some questions as well to the audience. And considering I'll be sharing my screen, the chat window would not be visible to me. So I would, if I can just request you to I'll be jotting down the questions. Sure, I'll let you know. Yeah. Okay, it's not only about the questions, Gurleen. It would be that I'll be asking some questions and I'll be seeking some responses. So if you can let me know that how many people have responded, or yes or no, or whatever that stuff, right? That would really help. Well, sure, sir. All right. With that, let me share my screen here and let me know once that is visible to you. Just a minute. Let me know if you can see my screen. Yes, sir, it's visible. All right. Let me start then. All right, a very, very warm good morning to all of you. The reason I say warm, because it is actually onset of the winters here, and we can still feel that chilliness and that cold in the weather here in Delhi. And I'm sure there in Fatehgarh Sahib, you must be feeling the same as well, right? Quite closer to the mountains you guys are. All right, so I welcome you to this super session, which is called Unleashing the Super Learner in You, Possess an Unbeatable Mindset. And this session is based on my book, which is #1 Amazon bestseller, Hidden Secrets of a Super Learner, right? So before we start, right, although Gurleen ma'am did a wonderful job in introducing me, and she actually covered a lot of aspects over here, let me introduce myself to you. My name is Bhaumik. I am having a rich 15 years of corporate experience. I'm actually working as a software QA manager in Fidelity. That is one of the mutual fund investment companies there in UK. I've been in this corporate space for 15 years now, and for last 10 years I've been empowering students with my public speaking and कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स. स्पेसिफिकली पिछले 5 सालों से मैं स्टूडेंट्स के साथ ही एसोसिएटेड हूं, एंड आई एम हेल्पिंग देम टू बिकम एकेडमिक, आई एम हेल्पिंग देम टू बिकम गुड एट एकेडमिक्स, गुड एट लर्निंग. जितने भी उनके एकेडमिक चैलेंजेस है, मैं उन सभी को एड्रेस कर रहा हूं, एंड आई एम हेल्पिंग देम बिकम सुपर लर्नर्स. Apart from super learners, what I'm helping them with is to possess an unbeatable mindset. आज की डेट में, if you look at the NCRB stats, right, it is a really sorry picture to state that आज की डेट में इंडिया में हर 50 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है just because of these pressures. I am actually helping them to possess those that particular mindset by which they can become unbeatable, that rock solid mindset. कि किस तरह से एक mindset होना चाहिए हमारा कि सारे के सारे challenges को हम लोग face भी कर पाए और उनको opportunities में convert कर पाए, right? So this is my small introduction, and because you have joined me in this particular course, in this particular webinar for next 60 minutes, there will be some takeaways for you guys, right? So आप लोगों ने कितनी बारी सुना है पेरेंट्स को बोलते हुए, टीचर्स को बोलते हुए कि बेटा कंसंट्रेट करो, बट क्या किसी ने बताया है कि कंसंट्रेशन होता क्या है?
today we'll be talking about that, right? And then the most important thing, guys, माना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन English is something which is mandatory, right? Which is a must-have skill, or rather I would say a basic skill in today's world is what I reckon, right? So we'll be talking about how we can build a super vocabulary. उसके बाद the secret to eliminate distraction. Not only you guys as students, right? School students, college students, even we adults, right? पूरा का पूरा संसार आज की डेट में एक चीज से पीड़ित है बेचारा, and that is distractions. I hope you all agree with me, right? We'll be learning how to eliminate distraction. Then we'll be talking about whole brain learning. जिस तरह से लांबा सर ने बताया that there is a right part and a left part to your brain. We'll be understanding कि किस तरह से हम पूरी की पूरी whole brain learning कर सकते हैं. And then I'll be talking about some study hacks which will help you to improve your productivity, जिसको हम स्मार्ट वर्क भी कहते हैं, राइट? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I'll be having a free gift for you as well. All right, so I'm sure that you guys are excited here, and that brings me to this slide, which is the most important slide here, which says that this is the information age we are living in, right? This is the information age. आज की डेट में आप गूगल पे जाइए, कुछ भी सर्च करिए, आपको सैकड़ों रिजल्ट्स मिलेंगे, हजारों रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? एंड इट इज नॉट इन दिस इंफॉर्मेशन टाइम, it is not your muscle power, guys. It is not your muscle power, but it is your mind power that matters, right? It is not your brute strength, but your brain strength that matters, right? और मैंने तो इतना भी सुना है और मैं मानता भी हूँ इस चीज को कि the better you learn, the better you earn. And I'm not only talking about financially, but also एक बार आप एक अच्छे लर्नर बन जाते हैं, आपको पता रहता है कि आपको अपनी लाइफ किस तरह से व्यतीत करनी है, आपको अपनी लाइफ किस तरह से एक स्टैंडर्ड के साथ जीनी है. Not only financially better you earn, but also from the quality of mind per se, the state of mind per se, you actually lead a better life, right? In fact, learn को अगर हम ब्रेक करें तो learn के अंदर ही एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं earn, right? EARN. So that is why it is really important. Okay, now on the screen you can see these gentlemen, right? Mr. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk. अब ये तीनों के तीनों इन तीनों में एंड और भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन सब में हम अगर कॉमन ट्रेट्स की बात करें कि इनमें कॉमन ट्रेट्स क्या हैं, तो वी वुड अंडरस्टैंड that they are celebrities. हम सबको पता है, yes, they are celebrities, they are billionaires, yes, of course they are billionaires, right? They are world leaders, absolutely right, they are world leaders, and they are master of their trades. जो भी वो चीज करते हैं उनको पता है कि अपने ट्रेड के बारे में A to Z सब कुछ पता है उनको. They know the nitty gritties of this, right? They are passionate and committed. They are passionate and committed. और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि ये सारी जो चीजें हैं, that they are master of the trades, they are passionate and committed. That is why they are celebrities, billionaires and world leaders, right? लेकिन अगर मैं एक सबसे important aspect की यहाँ पे बात करूँगा, जो कि हम सब probably miss कर जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत ही important aspect है that they are lifelong learners, right? And this is a concept which is really missing from our curriculum nowadays कि भाई ये lifelong learners होना बहुत जरूरी है, लेकिन बने कैसे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा. लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें lifelong learners बनना ही बनना है. You know why? Because your learning ability will eventually decide your earning capacity, guys. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Your learning ability, चाहे वो आज की डेट में AWS आपको सीखना है, क्लाउड आर्किटेक्ट सीखना है, Azure सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, मैं सारे टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ, माइंड यू, या फिर अगर आपको कोई एक नई हैबिट सीखनी है, कोई नया एटीट्यूड डेवलप करना है, the better you learn, the more you earn. Your learning ability, कोई भी चीज है, उस चीज को लर्न करने की जो एबिलिटी है, will eventually decide your earning capacity in future, guys, right? So this is really important, being a lifelong learner. The most vital skill in the 21st century is learning how to learn. Learning how to learn. फिर चाहे वो, जैसे कि मैंने बताया, फिर चाहे वो AWS हो, क्लाउड आर्किटेक्चर हो, आपको कोई सर्टिफिकेशंस करनी हो, राइट? AI में जाना हो, मशीन लर्निंग, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस, IoT आ गया है आजकल नया, राइट? We all know that, right? Because I personally work in AWS space, so I know कि क्या technical nitty-gritties involved होती हैं वहाँ पे. So I know that you have to learn a lot over there, right? But अगर आप ये समझ जाए कि किसी भी चीज को लर्न कैसे करना है, हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट कैसे करता है, अच्छे से रजिस्टर कैसे करता है इंफॉर्मेशन, ये अगर बेसिक चीजें हमें समझ में आ जाए तो वी विल बी बिकमिंग अ बेटर लर्नर, राइट? सो यहाँ पे मैंने जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का कंसेप्ट बताया गाइस आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यूजुअली हम लोगों के माइंड में क्या रहता है कि एक बारी बिना कॉलेज खत्म हुआ, कैंपस प्लेसमेंट
अब तो कुछ भी नहीं करना, राइट? अब तो लर्निंग फिनिश मेरी, अब तो मैं बस आराम से जॉब करूंगा 9 to 5, पैसे आ रहे हैं, वीकेंड पे एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे, ठीक है करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू. बट देन द माइंडसेट पार्ट हियर व्हिच सेज दैट इफ योर कॉलेज इज फिनिश्ड, your learning is finished is bad. Guys, mind you, degree, whether it is a BTech degree, whether it is an MBA degree or a PhD or a doctorate, it is just a stepping stone. It is just a stepping stone towards your learning, and learning का वो end नहीं है. Guys, please make it in your mind that it is not the end of the learning part, right? Second part is that a habit of continuous learning is one that is the most empowering success habit that anyone can adopt, right? Continuous learning, अब किस तरह से continuous learning करते हैं वो भी मैं आपको next slide में बताऊंगा, but continuous learning is something really good, right? And organizations today, guys, believe me, you know, I've actually taken more than 500 interviews till now. Okay, I've been the panel on the interview committee as well, and I've also trained the college fresh recruits who joined Sapient in my previous organization. I was with them for 6 months training program as well. Guys, organizations today also consider lifelong learning as a core component, right? वो कहते हैं, HR says कि what is that you have learned extra when you were in college, right? पिछले 1 साल में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको प्रमोशन तभी दी जाएगी when you have shown some value add या some learning curve. एक learning curve दिखाना बहुत जरूरी है, guys. So this is really important if you want to get ahead of your competition. Mind you, I'm talking about competition here. Yes, if you want to get ahead of competition, you will have to become a lifelong learner. सबसे पहला स्टेप, अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं, सबसे पहली हैबिट जो आपको इंकलकेट करनी चाहिए, दैट इज अ रीडिंग रूटीन गाइस, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट रीडिंग रूटीन? आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो हमसे कॉलेज की किताबें नहीं मुकती, आप रीडिंग रूटीन की बात कर रहे हो, राइट? आई अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम, बट देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल बी मेकिंग वंस यू डेवलप दिस काइंड ऑफ अ रीडिंग रूटीन, आपको जो उसका रिटर्न है ना यार, वो बहुत ही मैग्नेनिमस मिलेगा, राइट? सो यू नो व्हाट, वॉरेन बुफे जो कि आज की डेट में बिलियनर है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पैसिव इनकम आ रही है, उनकी कंपनीज चल रही है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इवन ही रीड्स 500 पेजेस अ डे. Even he reads 500 pages a day. An average CEO जो टॉप पे बैठा है, हमें बहुत ये लगता है कि यार वो तो टॉप पे बैठा है, उसको तो कुछ नहीं करना, आराम से बस वो बैठा हुआ है. Guys, the life is more challenging being a CEO, right? And that is why he or she reads 4 to 5 books a month. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड फोरम का स्टैटिस्टिक्स डेटा है, which says that an average CEO reads 4 to 5 books a month, right? That is where that power of compounding comes in. कि आप डेली बेसिस पे कुछ पढ़ते हैं, उसका रिटर्न जो है ना वो आपको एकदम से एक्सपोनेंशियल मिलता है. यू ऑल आर इंजीनियर्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से एन एक्सपोनेंशियल कर्व ओवर हियर, राइट? इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिटर्न, जैसे वेलोसिटी और टाइम में वो जो एक डायरेक्ट होता था, राइट? ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है जिसमें शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न आते हैं एकदम से एक्सपोनेंशियल आते हैं, व्हिच यू विल बी एक्सपीरियंसिंग. एलॉन मस्क यार, जिसने जो रॉकेट्स भेज रहा है आज की डेट में स्पेस में, he says that I learned how to build rockets just by reading books, right? And I'm not telling you to read only self-help books, right? Read the books about AWS, read the books about IoT, what's there in machine learning. आज की डेट में एक और मैं यहाँ पे मिथ भी तोड़ना चाहूंगा आप लोगों का, कंसिडरिंग मशीन लर्निंग की बात हुई है. हम लोग सारे आज की डेट में मशीन लर्निंग के पीछे भाग रहे हैं, which is very good. मशीन लर्निंग के पीछे भागते हैं तो कोर कंपोनेंट क्या आता है भाई? पाइथन सीखनी है. Guys, Python is just a language. Believe you me, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो एक्सेल में भी आप बना सकते हैं. द कोर पॉइंट इज दैट यू शुड बी गुड एट मैथ्स, क्योंकि जितने भी हमारे एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग के, वो सारे के सारे मैथ्स के हाइपोथेसिस यूज करते हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो गया या हाइपोथेसिस एनालिसिस हो गया, ये सारे के सारे आपके मैथ्स के जो फंडामेंटल्स है वो यूज करते हैं. सो बी गुड एट मैथ्स इफ यू वांट टू बी गुड एट मशीन लर्निंग. दैट वाज जस्ट अ प्रो टिप, एकदम से बाहर से आया क्योंकि मशीन लर्निंग की बात हुई थी. सो but then yes, this is important, right? And it is said that you become average of 7 people you spend your time with. आपकी संगति कैसी है, आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर. यू बिकम एवरेज ऑफ 7 people, right? So why not surround yourself with these gentlemen like Warren Buffett, Elon Musk? आप कहेंगे ऐसे कैसे? इनकी बुक्स पढ़ के, ये जो बोल रहे हैं आपको, इनके साथ रह के, right? Just surround yourself with that particular environment of books which will help you to gain positivity and information which will help you to
maximize your earning capacity, right? So that is where this reading routine really helps, right? And skills and technological upgrades, तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि this is really good. All right, so this is an amazing picture, right? हम लोगों ने कितनी बारी सुना है और हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं, right? कि there will be a time when robots will be kicking you off your job, and you need to, we'll be having a lot of job losses over here, right? Point ये नहीं है कि robots हमारी jobs replace कर लेंगे या नहीं. Point ये है कि are you ready to upgrade yourself technically and you know, on your soft skills part as well, technically and your soft skills part as well, to become capable कि आप कंधे से कंधा मिला के चल सको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है. सवाल ये नहीं है कि रॉबर्ट्स आपकी जॉब ले जाएंगे. रॉबर्ट्स जॉब्स नहीं लेके जा सकते. क्यों? क्योंकि रॉबर्ट्स को भी आप लोग ही बनाओगे, रॉबर्ट्स को भी इंसान ही बनाएगा, राइट? पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या आप as an individual इतने कैपेबल होते हो? Are you you know, do you come up to that level कि आप you know उस पॉइंट पे परफॉर्म कर सको खुद को अपग्रेड करके? पॉइंट ये है, you know, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, those who cannot learn, unlearn and relearn. कितनी बार ये होता है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम बैठे होते हैं और हम उनको ना अनलर्न करने से कतराते हैं. हमें लगता है कि नहीं यार यही मेरी सच्चाई है. फॉर एग्जाम्पल, एक कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है यही मेरी पूरी दुनिया है. He refuses to unlearn that no, this is not only my दुनिया. बाहर निकल के अगर मैं देखूं, there's a wide scope, there are wide horizons which are present over there, right? So unlearn करना भी बहुत जरूरी है, guys, right? So that brings me to some of the skills. I wanted to include this slide considering you are the CSE guys over here, and you know, these would be some hottest technologies in coming time. What coming time, in fact अभी से ही इन सब चीजों पे काम बहुत अच्छे से शुरू हो चुका है, right? Whether it is AI, machine learning, deep learning का बहुत ज्यादा significance आज की डेट पे जो हम बात करते हैं, NLP which is natural language processing, blockchain, coding तो यार बेसिक इनका है. ये blockchain अगर आपको लगता है ना कि क्या है, blockchain अगर आपको सीखनी है, you should be good at Java, right? Once you have a strong hold on Java, blockchain is simple, guys. You can become a blockchain developer बहुत आसानी से, and believe me, there are a lot of scope for blockchain. IoT is coming, like you know, it's booming like anything, and digital marketing specifically पिछले COVID पिछले 6-8 महीनों में digital marketers की तो मौज हो गई है. You know, the people who are good at digital marketing are actually earning a very handsome salaries and the increments as well, right? But साथ में मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस पे जितना देखा है, जितने भी लोग टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, they often lack the communication skills, they often lack soft skills. और ये मैं 95% of those people को बोल सकता हूँ कि 95% of people who are good technically, they actually lack these skills, and that is why they are not able to grow as much as they could have अगर उन्होंने अपने इन soft skills पे काम कर लिया होता तो, right? For example, public speaking skills. Guys, I'm giving you a real example here, right? There was a developer in our organization, very good developer. उसने क्या किया, उसने .NET के client में, you understand this language, right? उसने क्या किया, उसने .NET के client में उसने embed कर दी Angular की screen, right? Angular की screen embed करके, and it was working really fantastically. And no one in our organization did that. He was the first individual to do that in our entire organization, right? But जब उसको बोला गया कि उसको present करना है, उसने जिस तरह से प्रेजेंट किया, ऐसा लग रहा था कि उसने it's just another piece of coding what he has done, and he actually lost that opportunity. This should not be the case, right? If you are good at one pillar, these two are the pillars, guys. एक pillar अगर आपका strong है, second pillar you need to work on that. That is your communication skills. आपको किस तरह से बात करनी है, public speaking, presentation skills, very important, very important. Collaborate किस तरह से करना है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, राइट, वहां पे कोलैबोरेशन बहुत काम आती है. इट्स नॉट ओनली वो जो हम सिर्फ इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, two APIs talking to each other, but it's also two teams, two individuals talking to each other as well. Very important, right? So these are some of the skills of 21st century which we want to learn. लेकिन होता क्या है कि अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी चीजें हैं सीखने को, राइट? और उसके बाद क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा हूं इतने टाइम से, आई नो सम ऑफ द कॉमन चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, और आप मेरे साथ इत्तेफाक भी रखेंगे यहाँ पे, राइट? कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना करिकुलम मेमोराइज नहीं कर पाते, राइट? हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन
रिटेन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं बार बार, राइट उसके बाद हम लोग वी आर एक्चुअली बॉम्बार्डेड बाय डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एज वेल, कि कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी ने मूवी चला ली, कभी दोस्तों ने बोला चल यार मूवी चलते हैं, चल यार यहाँ गेड़ी माराते हैं, ये कर लेते हैं, यू नो ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस आर देयर एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, राइट दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट एंड फोकस। हमें पता है हमें AWS करना है, हमें पता है दैट दीज आर द टेक्नोलॉजीज वी नीड टू लर्न, बट देन ये डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ फोकस और प्रोक्रास्टिनेशन, छड़ यार कल करांगे, कल करेंगे यार, इसको कल करते हैं, एग्जाम आने दे तब पढ़ लेंगे, एक रात पहले हम लोग, हमें पता है कि हम किस तरह से एक रात पहले 2 रात पहले काम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, वी प्रोक्रास्टिनेट टिल द एंड, राइट। सिलेक्टिव इंटरेस्ट होता है स्टडीज में, कोई एक सब्जेक्ट समझ में आता है, दूसरा नहीं आता, राइट। इंटेलिजेंट तो है मेरा बेटा, कितनी बारी पेरेंट्स कहते हैं, बट अपने पोटेंशियल को केटर नहीं कर पाता पूरा, ऐसा होता है हम लोग के साथ, कितनी बारी ऐसा होता है हम लोग के साथ, राइट। सो these are some of the common challenges जो आप स्टूडेंट्स फेस करते हैं। I'm totally with you guys here, right? हम लोग ये समझ रहे हैं कि लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि 2 पिलर्स पे काम करना है, विच इज टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद हमें ये भी पता है कि यार हमारे ये सब चैलेंजेस भी हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें बोला जाता है एक चीज करने को, दैट इज फोकस, कंसंट्रेट। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है, यार करे तो करें क्या, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें करनी है, कहां से शुरुआत करें, how do we start, how do we go ahead, right? It is just like आपके शूज में किसी ने पेबल डाल दिया है, किसी ने कंकर डाल दिया, and you are being asked to run, you as students are being asked to run, right? बेशक आप चल लेंगे, आप दौड़ लेंगे, हो सकता है आप रेस भी जीत जाएं, लेकिन at the end of the day you will be left with your foot bloodied, totally खूना खून रहेगा आपका पैर, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। और यही वजह है कि हमने स्टडीज को पेन के साथ परसीव कर लिया है, हमें स्टडीज पेनफुल लगती है, but guys believe me, it is not that stuff, it is not that tough, it is not that painful, it is actually a badi mazedar cheez, right? And that is what we'll be learning here, ki let us learn how to learn, right? Let us learn how to learn, okay? और एक बारी सबसे पहले ना हम लोग फंडामेंटल पे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग उतनी ही लंबी खड़ी हो सकती है जितना उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे we'll be talking about the foundations, all right? So let us learn how to learn now. How many of you are excited to learn how to learn? Just write I in the chat box. Just write I in the chat box. Just write I in the chat box. Ma'am, please let me know how many responses are we getting. I won't be able to count, sir. They're just innumerable. Everybody's writing I. Very nice. Very nice. That is what I just wanted to hear. कि ठीक है, मेरे को count नहीं चाहिए था. Just that scroll it is ticking. It is. Okay. All right. Thank you. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लर्निंग के साथ। लर्निंग का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो होता है कंसंट्रेशन, राइट। और बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने सबने सुना है, पेरेंट्स को कहते हुए, टीचर्स को कहते हुए, बेटा कंसंट्रेट करो। नाउ इफ आई आस्क यू टू प्ले, टू स्विम, टू राइड अ बाइसाइकिल, आपको पता है आपको क्या करना है, राइट। आपके दिमाग में वो एक इमेज आती है, लेकिन जब मैं बोलता हूं आपको कि कंसंट्रेट करो, तो क्या कोई इमेज आती है आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं आता, आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, राइट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक अनस्पेसिफिक सा वर्ब है ये कंसंट्रेशन, राइट। सो एक बात समझते हैं, आपने कोविड से पहले कोई मूवी देखी होगी हॉल में, राइट। आपने कोविड से पहले कोई मूवी देखी होगी हॉल में, और अब हो गए शायद 6-7 महीने हो गए। नाउ इफ आई आस्क यू द सीन्स ऑफ दैट मूवी, ठीक है, डायलॉग्स ऑफ दैट मूवी, स्क्रीन प्ले कैसा था, गाने कौन से थे, कौन से गाने के बाद क्या आया, क्या स्टोरी थी, कहाँ एंड हुआ, क्या सस्पेंस था, आई एम श्योर आप लोग 60 to 70 इनफैक्ट 80% मेरे को बता पाएंगे कि क्या क्या चीजें थी उस मूवी में, राइट। यस और नो, राइट, यू विल बी एबल टू टेल मी। अब एक बात बताइए कि क्या आपने वो मूवी एक बार ही देखी, उसके बाद क्या बार बार रिवाइज करी? आई एम श्योर नो, राइट। और जब आपने वो मूवी देखी तो क्या आप इस तरह से बैठे थे ब्लिंकर्स लगा के? ब्लिंकर्स वो होते हैं जो घोड़े के आसपास लगाया जाता है ताकि वो सीधा दिखे, तो क्या आपने वो ब्लिंकर्स लगा के देखी थी मूवी की, यार छोड़ मेरे को कंसंट्रेट करके मूवी देखने दे, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट? क्या ऐसे देखी थी? नहीं देखी थी, राइट। तो क्या वो चीज थी जिससे कि आपको वो सब चीजें याद रह गई? लेट मी टेल यू, द ओनली वन थिंग वाज which actually enabled your concentration over there was the interest in that movie. और आप इत्तेफाक रखेंगे मेरे साथ इस बात में कि जब भी आपका कोई फेवरेट लेक्चर होता है, राइट, सपोज यू लव जावा, ठीक है, और जावा की क्लास हो रही है, राइट, या फिर you love databases, right, SQL, आपको SQL बहुत पसंद है, आप तो खैर नो SQL भी आ गया, आपको SQL बहुत पसंद है, तो SQL की क्लास हो रही है and you are learning about those things,
यू विल बी ऑल एक्साइटेड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कंधे ऐसे ऊपर होंगे, आपकी आंखों में एक शाइन होगी, आपको लगा हाँ यार ये तो चीज मेरे को बहुत अच्छे से आती है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ इसको या पढ़ती हूँ। नेक्स्ट 40 मिनट्स से जितनी देर भी वो लेक्चर रहता है, यू विल बी हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। आपको उस चीज को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, राइट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं मैं। आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल। आई यूज्ड टू लव इलेक्ट्रिकल मोटर्स एज अ सब्जेक्ट अ लॉट, एंड बिलीव यू मी, मेरे को कभी भी उसकी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सब कुछ लेक्चर से ही ग्रास्प कर लेता था और मेरे को सब कुछ याद रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता था उसके अंदर, राइट। But C++ was hard for me to that will be a confession, that was really hard for me। और वहीं पे अगर आपके कोई ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट का टीचर आ जाए, अगले 40 मिनट के आपके कंधे भी डाउन होंगे, आपका मूड भी नहीं करेगा, माइंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका मूड भी नहीं करेगा, राइट। और नेक्स्ट 40 मिनट आप इस तरह से बैठे होगे, आपको लगेगा यार ये कब खत्म हो 40 मिनट और ये जाए। ऐसा होता है हमारे साथ। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, concentration is not a verb, concentration is the state of mind, right? concentration क्या है? it is a state of mind। concentration तभी enable होता है जब आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है, जब आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है या एसोसिएशन होता है, that is where this concentration comes in, right? what I say is that any information with emotion, with your strong positive emotion is your long term memory। और वो इमोशन के स्केल में अगर हम देखें, इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट, बोरिंग इज द लोएस्ट। इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट, बोरिंग इज द लोएस्ट। तो अगर जितना ज्यादा इंटरेस्ट किसी भी, सोचे आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, बोरिंग से इंटरेस्टिंग, बोरिंग से इंटरेस्टिंग, जितना ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा, आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग उतनी ही ज्यादा उस चीज में होगी, राइट। नाउ this brings me to a line here or a quotation here which says that wherever interest goes, concentration flows automatically। wherever interest goes, concentration flows, right? and the $1 million fact is that your mind tends to concentrate automatically। बहुत important word है, automatically concentration हो जाती है on the topic of your interest or liking। This is what is concentration। ये होती है concentration। कोई ऐसा बाहर से एलियन कोई नहीं आया जो हमें ये concept सिखा के गया है, but this is what concentration is। ऑलराइट, बट यहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ठीक है, जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं उसमें तो मन लग गया, लेकिन हाउ अबाउट दो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट करता ही नहीं है, माइंड इंटरेस्टेड ही फील नहीं करता, वो तो ऑलरेडी बोरिंग है, उसमें कैसे हम लोग करें, राइट? तो उसके लिए गाइस अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू द 6 modalities on which our mind gets interested in। 6 modalities in which our mind gets interested। हमारा माइंड इंटरेस्टेड फील करता है किसी भी चीज में जो कलरफुल होती है, जिसमें साउंड होती है, जिसमें इमेजेस होती हैं और मूवी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शहर में 2 सिनेमा हॉल्स हैं, वन इज शोइंग यू मूवी इन ब्लैक एंड व्हाइट, वन इज शोइंग इन कलरफुल, कौन सा देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कलरफुल। वन इज अ म्यूटेड मूवी, सेकंड शोज द मूवी विद द साउंड, कौन सी देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली विद द साउंड, राइट? वन शोज द मूवी इन फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो, पीपीटी स्लाइड शो, और दूसरी प्रॉपर मूवी की तरह है, कौन सा आप देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली द मूवी वन, जिसमें मूवी दिखाई जा रही है, राइट? सो हमारा माइंड इन 3 चीजों में एसोसिएट करता है, कलर, साउंड एंड इमेजेस एंड मूवीज, राइट? चौथी चीज है समथिंग यूनिक और बिजार। प्री कोविड टाइम्स में जब आप अपने घर से कॉलेज से घर ट्रेवल करते थे, बस से जब आप बाहर देखते थे, आपको बहुत सारे पेड़ दिखते थे, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे इंसान दिखते थे, राइट? अ लॉट मेनी थिंग्स यू यूज्ड टू सी। आपको सब याद रह जाता था? आपको नहीं रहता था याद, राइट? बट इमेजिन कीजिए one fine afternoon when you were, one fine evening when you are returning from your college to home, आप क्या देखते हैं कि एक मारुति वैन है जो हमारी ओमनी आती थी पुरानी वाली, उसका फ्रंट तो मारुति 800 की तरह है और उसका बैक स्विफ्ट की तरह है, और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होकर नाच रहा है जिसकी पूंछ निकली हुई है, राइट? और वो सीटियां भी बजा रहा है। नाउ टेल मी कि आप इस इंसिडेंट को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी भूल पाएंगे? आप अपने बच्चों को भी ये इंसिडेंट बता रहे होगे, बच्चों के बच्चों को भी ये इंसिडेंट बता रहे होगे, राइट? यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज अ यूनिक इंसिडेंट, इट इज अ बिजार इवेंट। कोई भी अगर चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हमें दिखती है, अजीब दिखती है, वो हमारा दिमाग उस पे चिपक जाता है, या उसको इंटरेस्ट, उसके साथ एसोसिएट फील कर लेता है, और एकदम से वो कहता है कि हाँ यार ये सही चीज है, और वो आपको याद भी रह जाती है, कोई भी अजीब चीज का अगर हम एग्जांपल लें, राइट? फिफ्थ थिंग इज एनीवेयर वेयर यू आर प्रेजेंट। सो आपकी जब वो कॉलेज की ग्रुप फोटो होती है या जो स्कूल की ग्रुप फोटो होती थी, राइट, वो फोटो आपके हाथ में आती है, आपकी सबसे पहले नजर कहां पे जाती है? आपकी टीचर पे, आपके बेस्ट फ्रेंड पे, आपकी सहेली पे, या आप पे खुद पे? किस पे जाती है?
सबसे पहले आपकी नजर जाती है आप खुद पे, भाई मैं कहां पर हूं, चाहे कोने में भी होना, छोटे से कोने में भी आप अगर बिल्कुल बैठे हुए थे, हाँ यार ये रहा मैं, ये रहा मैं, राइट? योर माइंड गेट्स एसोसिएटेड वेयर यू आर प्रेजेंट एज अ पर्सन, where you are present as a person, right? And the sixth thing, which is really important, anywhere where your feelings and emotions are associated, your mind tends to remember those things. For example, आप याद कीजिए आपको कब पहली अप्रिसिएशन मिली, स्कूल में, राइट? आपका जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था, यू वर रिलेटेड, राइट? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट एडमिशन इनटू आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, राइट? आई स्टिल रिमेंबर दोस, दैट पर्टिकुलर जो काउंसलिंग का जो पूरा माहौल था और मेरा नंबर आया, आई स्टिल रिमेंबर दोस, राइट? दैट्स लाइक 15 प्लस फॉर 19 इयर्स बैक, राइट? तो मेरे को अभी तक वो चीजें याद है, क्यों? क्योंकि मेरा इमोशंस उनके साथ जुड़ा हुआ है, राइट? 8th क्लास में दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम व्हेन आई गॉट 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स। मेरी टीचर का वो एक्सप्रेशन, मैं घर में आया, मेरी मदर का एक्सप्रेशन मेरे को अभी तक याद है, मेरे फादर का एक्सप्रेशन कि भाई ये कैसे ले आया। तो यू नो वो सब चीजें यू टेंड टू रिमेंबर दोस थिंग्स बिकॉज इमोशंस आर अटैच्ड। इसलिए कहा जाता है कि आपकी पहली सैलरी, आपकी पहली कार, पहला प्यार, ये सब चीजें हमें याद रह जाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ इमोशंस अटैच हो जाते हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद इमोशन इज इक्वल टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको वो याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी समा जाती है आपके अंदर, राइट? सो दीज 6 थिंग्स are where your mind gets interested, और जहां पे भी इंटरेस्ट आ जाता है, ये जो 6 चीजें ज्वाइन करके जहां पे भी इंटरेस्ट आ गया, वहां पे कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगी, इम्प्लिसिट कंसंट्रेशन आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, राइट? और इस प्रोसेस को गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ रहिएगा, इस प्रोसेस को जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन में कलर्स डालते हैं, साउंड डालते हैं, मूवीज डालते हैं, इमोशन डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन। यू नो व्हाई विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, ये फैक्ट है बहुत बड़ा, हमारा जो ब्रेन है उसको ना टेक्स्ट समझ नहीं आता, उसको टेक्स्ट समझ नहीं आता। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं आपके ब्रेन में इमेजेस बनती है, उसको इमेजेस समझ में आती है। इफ यू डोंट बिलीव मी गाइस, एक काम करते हैं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ एन एलिफेंट। 3 सेकंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज करेंगे एंड थिंक ऑफ एन एलिफेंट। नाउ ओपन योर आईज एंड लेट मी नो, राइट इन द चैट बॉक्स कि आपने क्या देखा। राइट इन द चैट बॉक्स कि आपने क्या देखा। आपने ELEPHANT देखा या आपने एलिफेंट की इमेज देखी? आपने क्या देखा? राइट इन द चैट बॉक्स। So what's the response I'm getting? You are not audible, sir. What's the response I'm getting, ma'am? So it's all about the image. Everybody's Images, writing right? elephant's image, yes. Sure, very nice. So basically what happens is, guys, now this is again a pro tip I would tell you, that our mind, our brain understands the information well in case of images. और यही रीजन है, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी करें, अगर आप देखें, आपको आज तक वो ग्रीडी डॉग, थर्स्टी क्रो की कहानियां याद हैं, राइट? वो हेयर और टॉर्टॉइस की स्टोरी याद है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 11th में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज थे वो याद है, आप कहेंगे नहीं। तो रीजन क्या था कि वो हम सब ने पढ़ी थी, इमेजेस और स्टोरीज, और इंटरेस्टिंग थे वो, तभी हम लोगों को वो सब चीजें याद थी, राइट? और जैसे ही हम किंडरगार्टन से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 12th कॉलेज आगे जाते रहे, हमारी टेक्स्ट बुक से एक चीज गायब होती रही, और वो थी ये इमेजेस। एंड दैट इज व्हाई we face a lot of trouble in remembering and learning the things, right? So when we know that my brain understands the images really well, that takes us to the secret number 1 of concentration, and that is visualize the information by adding any of these 6 modalities to make it interesting. और एक बार इंटरेस्टिंग हो गया, कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगी। एक बार इंटरेस्टिंग हो गया, कंसंट्रेशन ने अपने आप आ ही जाना, उसने कहीं नहीं जाना, राइट? सो पहला सीक्रेट है कंसंट्रेशन का कि आपको विजुअलाइज करना है इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन में इन 6 मोडालिटीज को डालना है। समझ नहीं आ रहा तो 2 मिनट मेरे साथ रुकिएगा, 2 से 5 मिनट, हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट? और तब मजा आएगा, ऑलराइट? This brings me to secret number 2. Now imagine कीजिए कि आप दोपहर को अकेले हैं घर पे, right? And someone knocks at your door, और आप you look outside from the window or from the door hole. आप देखते हैं कि there's a person who you don't know. आपको नहीं पता, he is a totally stranger. Now tell me, क्या आप उसको घर के अंदर आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, right? But imagine your father calls you up and he says कि बेटा श्यामलाल आएगा,
right? There will be a person who will be visiting the home. His name is Shamlal. He'll be wearing a cap. He'll be wearing a red t-shirt, blue jeans, so and so, whatever. वो describe कर देते हैं उनको उसका पूरा, right? And जो table पे papers पड़े हैं, just give it to him. Now tell me, will you allow him in your home? Definitely yes. Obviously इस तरह से hug नहीं कर रहे होगे उसको, लेकिन you will allow him inside and you will give the information or those papers and you will let him go then, right? सेम तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें AWS या AWS से भी पहले मैं थोड़ा और बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटल्स बना रहे हैं अभी अपने. आपको सपोज कीजिए वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट? आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको इंग्लिश के नए वर्ड सीखने हैं. अब ये इंग्लिश का एक नया वर्ड है, आप उसको वो दैट इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू. इट ट्राइज टू एंटर योर ब्रेन, राइट? लेकिन आपका ब्रेन रेजिस्ट करता है कि भाई तू तो अननोन है, यू जस्ट स्टे देयर, आई डोंट वांट यू टू कम इन. बट किसी तरीके से, आई एम टेलिंग यू, किसी तरीके से, वो तरीका मैं समझा रहा हूँ, किसी तरीके से अगर इस अननोन इन्फॉर्मेशन को हम एसोसिएट कर लें किसी नोन इन्फॉर्मेशन के साथ. आपने जब अपने पापा को फोन किया तो आपके पापा ने क्या किया? आपके पापा ने उस अननोन बंदे को एसोसिएट कर दिया अपने साथ कि भाई मैं इसको जानता हूं, तो यू अलाउ हिम इन, राइट? वो एक एसोसिएशन, एक चेन बन गई. दैट इज व्हाट योर ब्रेन लुक्स फॉर ऑलवेज. जब भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो जब ब्रेन के अंदर आना चाह रही है, आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा, भाई रुक जा. लेकिन अगर किसी तरीके से हम इस अननोन इन्फॉर्मेशन को नोन के साथ कनेक्ट कर दें, तो दिस इन्फॉर्मेशन गाइस विल बी योर्स फॉर एवर. एंड दैट टेक्स मी टू द सीक्रेट नंबर 2, which says that associate any new information to the already known information and it will be yours forever, right? So अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है यहाँ पे, परेशान मत होना, just relax because we'll be learning how to do that as well, right? अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट? बिकॉज वी डू हैव स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री में, बिकॉज वी डू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, राइट? अब तो ठीक है, विद द एडवेंट हमारे इंडियन क्लाइंट्स भी बहुत सारे हो गए हैं, बट देन majority आपके US and UK, European countries and all those clients are there. That is where you need to have a command on spoken English, right? Guys, this is the same guy who's speaking in front of you. मेरे को याद है 12th के बाद, मैंने बचपन से 12th मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दिल्ली में ही, राइट? 12th के बाद जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, I got a job offer for a BPO. उसमें BPO नए आए थे, राइट? BPOs और कॉल सेंटर. I got a job offer and सैलरी भी उस वक्त अच्छी खासी दे रहे थे. They were quite handsome salaries उस वक्त. तो my dad told कि why don't you join this BPO? ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे काम कर लियो, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, पॉकेट मनी बन जाएगी, like that, you know. हम we all think like that, right? But you know what was my reply? मैंने कहा पापा ज्वाइन तो कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इंग्लिश बोल भी पाऊंगा या नहीं. You know, that was actually my state. And believe me, उस वक्त मेरी स्टेट ऐसी थी कि मैं एक पूरा सेंटेंस अगर मेरे को बोलना होता था तो मेरे को सोचना पड़ता था कि अच्छा इसकी इंग्लिश क्या होगी, अच्छा ये होगी. That is how, you know, I converted, I translated in my mind and then I spoke. ये मेरी plight थी उस वक्त. And this is what I'm talking about my college for second year. You know, English is something which is really important. और अगर हमें English सीखनी है, you know, one thing is imperative and that is learning how to enhance your vocabulary. Learning how to enhance your vocabulary, क्योंकि आपकी जब तक vocabulary नहीं बढ़ेगी, words की vocabulary नहीं बढ़ेगी, you will always fall short of words. आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या बोलना है, इस जगह कौन सा word लगाना है. All right. So what we'll be doing is we'll be applying these secrets of concentration, what we just learned, to learn new words. All right. सबसे पहला word आता है mitigate. मैं सीधा point पे आता हूँ. सबसे पहला word आता है mitigate. मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन. मिटिगेट का मतलब क्या होता है? टू लेसन, मतलब कम करना, किसी भी चीज को कम करना, ठीक है? और अब एक बात समझेंगे कि मिटिगेट इज अ वर्ड व्हिच इज टोटली अननोन टू अस. हमें बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, राइट? नाउ जस्ट क्लोज योर आईज गाइस, जस्ट क्लोज योर आईज हियर and just close your eyes for next like 30 40 50 seconds and let me tell you a story. Now mitigate हमें नहीं पता. Let us break mitigate to मिट्टी का गेट. Let us break mitigate to मिट्टी का गेट, ठीक है? Now imagine that आप एक बीच पे बैठे हैं अपने दोस्त के साथ और वहां पे आप मिट्टी का, बीच की मिट्टी से एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं. बीच की मिट्टी जो कि पिंक कलर की है उससे मिट्टी का गेट बना रहे हैं, राइट? मिट्टी का गेट बना रहे हैं और आपका फ्रेंड उसके ऊपर पानी डाल रहा है बूंद बूंद करके और आप उसको गुस्सा कर रहे हैं कि यार ऐसा मत कर, इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, इससे इसकी स्ट्रेंथ
कम हो रही है, इससे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लेस हो रही है, राइट। आई रिपीट माई सेल्फ, इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन अ बीच, आप मिट्टी का गेट बना रहे हैं पिंक मिट्टी से, आपका फ्रेंड उसके ऊपर पानी डाल रहा है बूम बूम करके, और आप उसको डांट रहे हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। यू कैन ओपन योर आइज गाइस, यू कैन ओपन योर आइज। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, मिटिगेट अननोन था, मिटिगेट अननोन वर्ड है हमारे लिए, राइट, बट हमने उसको लिंक कर दिया किसके साथ, मिट्टी का गेट। अब मिट्टी का गेट तो मेरे दिमाग में पता है कि क्या होता है, राइट, मिट्टी का गेट इज समथिंग आई नो, आई एम कंफर्टेबल, माय ब्रेन इज आल्सो कंफर्टेबल विद। मैंने क्या किया, मैंने एसोसिएशन, एक ब्रिज फॉर्म कर दिया बिटवीन मिट्टी का गेट एंड मिटिगेट, राइट, जिसको हम अपनी भाषा में ट्रिगर कहते हैं, राइट, पीएल सीक्वल में ट्रिगर कहते हैं। तो हमने एक ट्रिगर साथ में जनरेट कर दिया कि भाई मिट्टी गेट जब भी मेरा दिमाग सुनेगा उसको दिमाग में आएगा मिट्टी का गेट, ठीक है, मिट्टी का गेट आया, और जैसे मिट्टी का गेट आया, आई वीव्ड अ वंडरफुल स्टोरी अराउंड इट। मैंने विजुअलाइज करवा दिया आप लोगों को, क्या कि आप एक बीच पे बैठे हैं और बीच की सैंड का कलर क्या है, पिंक। कभी देखिए कोई बीच जिसका पिंक कलर हो, तो मैंने क्या बिजारनेस डाल दी इसके अंदर, यूनिकनेस डाल दी, ठीक है। मिट्टी का गेट कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं, राइट। और गुस्सा कौन कर रहा है, गुस्सा कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, इमोशंस भी आ गए। सो मैंने क्या किया, मैंने इस इंफॉर्मेशन में मैंने साउंड भी डाल दी, मैंने इमोशंस भी डाल दिए, मैंने इसके अंदर कलर भी डाल दिया और एक मूवी बना दी, सो दैट यू रिमेंबर इट। अब आज के बाद कभी भी आपको मिटिगेट वर्ड सुनाई देगा या यू विल कम अक्रॉस मिटिगेट वर्ड, आपके दिमाग में सीधा ट्रिगर जनरेट होगा मिट्टी के गेट का, और ये स्टोरी आ जाएगी कि मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेस करना, राइट। सो हमने यहाँ पे वही दो चीजें अप्लाई करी है, दो सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन अप्लाई करे हैं, राइट। एंड नाउ वी विल अप्लाई दीज टू मोर वर्ड्स, बिकॉज द मोर वी प्रैक्टिस द मोर आवर ब्रेन टेंड्स टू गेट इनटू दैट ग्रूव। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं आपको 5 या 6 वर्ड्स बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे मेरे साथ रहिएगा, और ये 6 वर्ड्स आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रॉमिस है, एंड आई एम सो श्योर अबाउट दिस, बिकॉज ये चीज मैं कम से कम 5000 बच्चों के ऊपर कर चुका हूं और उनको ये सब चीजें याद रह जाती है। और उसके बाद एक देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल, राइट। वर्ड है इंसिपिड। अब इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रट्टा मेथड से करिए जो रोट मेथड होता है, इंसिपिड टेस्टलेस, इंसिपिड टेस्टलेस, इंसिपिड टेस्टलेस, आप टंग ट्विस्टर ही हो जाएगा आपके लिए, राइट। आपको समझ नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब इंसिपिड को आपने ब्रेक किया, क्या, इतनी स्पीड। इंसिपिड आपको नहीं पता, बट इतनी स्पीड तो आपको पता है दिमाग में, राइट। आपने क्या किया, आपने एक विजुअलाइजेशन बना दिया कि सपोज आप घर में गए, आप बहुत तेज तेज खाना खा रहे हैं, योर मदर इज सेइंग कि बेटा अगर आप इतनी स्पीड से खाना खाओगे तो खाना विल बिकम टेस्टलेस, ठीक है। अगर आप इतनी स्पीड से खाना खाओगे तो खाना विल बिकम टेस्टलेस। सो इंसिपिड से क्या याद आया, इतनी स्पीड से खाना खा रहे थे तो खाना क्या हो गया, टेस्टलेस हो गया, राइट। सेकेंड वर्ड इज चोटेल। अब चोटेल अगेन इज अ अननोन वर्ड, लेकिन मैंने चोटेल को क्या किया, ब्रेक कर दिया, चोर टल गया या चोरी टल गई, राइट। नाउ अगर किसी के घर में चोरी टल गई तो ऑब्वियस ही बात है, ही विल बी लाफिंग इन अ नॉइजी वे कि हा मैं तो बच गया भाई, मैं तो बच गया, चोरी बच गई, चोरी टल गई, चोर टल गए, राइट। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट दैट फनी इमेज, राइट। यू क्रिएट दैट फनी इमेज, दैट फनी मूवी कि किसी के घर में चोरी टल गई और वो बहुत ही बंदा खुश हो रहा है कि मेरे घर तो चोरी टल गई, पता चले अगले रात फिर से चोरी होगी। एनीवेज, सो चोटल से याद आता है क्या, चोर टल गया। एंड चोटल का मतलब क्या हो गया कि चोर टल गया तो आप यू आर लाफिंग इन अ नॉइजी वे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीकेट। इंट्रीकेट से मेरे को याद आता है एंट्री कैट। इंट्रीकेट से मेरे को क्या दिमाग में आता है, एंट्री कैट। मैंने इसको फिर से तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि बिल्ली जो है वो खिड़की में से घुसने की कोशिश कर रही है और उसकी जो एंट्री है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। उसकी जो एंट्री है वो क्या हो रखी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एंट्री फॉर द कैट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इंट्रीकेट का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रीकेट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वांडर। अब जरूरी नहीं है कि आपने ना वर्ड को ब्रेक ही करना है। स्क्वांडर से राइमिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइमिंग भी आपके दिमाग में ऑलरेडी एसोसिएशंस होती हैं। स्क्वांडर से मेरे को दिमाग में आता है स्प्लेंडर बाइक। आपके दिमाग में कुछ और भी आ सकता है, आप उसको भी यूज करके स्टोरी बना सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो, राइट। स्क्वांडर का मतलब होता है मनी वेस्ट। नाउ यहाँ पे मैंने स्टोरी क्या बनाई, ही वेस्टेड ऑल हिज मनी जस्ट टू बाय अ स्प्लेंडर बाइक। अब बताओ यार, स्प्लेंडर जैसी सस्ती बाइक को खरीदने के लिए क्या कोई बंदा अपनी सारी मनी वेस्ट कर देगा? अगेन थोड़ा यूनिक हो गया, थोड़ा बिजार हो गया, राइट। और प्लस हमने मूवी भी बना दी कि ही वेस्टेड, माय फ्रेंड वेस्टेड ऑल हिज मनी जस्ट टू बाय अ स्प्लेंडर बाइक। यार लेनी थी तो बुलेट लेता ना यार, स्प्लेंडर बाइक लेके क्या करेगा, राइट। यू वेस्टेड ऑल योर मनी, तो वहां पे एक फन एलिमेंट भी आ गया, राइट। सो ही वेस्टेड ऑल हिज मनी। स्क्वांडर से क्या याद आया, स्प्लेंडर बाइक। और स्प्लेंडर बाइक को खरीदने के चक्कर में उसने अपनी सारी मनी वेस्ट कर दी, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड से मेरे को याद आती है कैंडीज, टॉफियां, ठीक है। और कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, आउटस्पोकन। मेरे बॉस ने मेरे को ऐसी कैंडीज खिलाई कि जिसको खाने के बाद मैं आउटस्पोकन हो गया और फ्रैंक हो गया।
और उसके बाद तो पता नहीं मैं उसको क्या क्या बोल दिया यार, मेरे को खुद नहीं पता चला। अगले दिन पता चला जब मेरे बॉस ने मेरे को फटकार लगाई। ऑलराइट, सो आफ्टर ईटिंग दिस कैंडी व्हिच माय बॉस गिव टू मी, आई बिकेम आउटस्पोकन एंड फ्रैंक। वो कैंडी खाते पता नहीं कुछ तो था उसके अंदर यार, मैं एकदम से बस फ्रैंकली और आउटस्पोकन सब कुछ बोलने लग गया। ऑलराइट, नाउ टेल मी गाइस, आपने सिर्फ एक बार ये इंफॉर्मेशन पढ़ी है, आपको मजा आ रहा है यहाँ पे, राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज एवराइस। एवराइस का मतलब होता है ग्रीड। अब एवा राइस को मैंने ब्रेक कर दिया, एवा क्वालिटी का राइस या एवा ब्रांड का राइस। लेट्स इमेजिन एवा क्वालिटी का राइस, एवा क्वालिटी का राइस खाते ही आई बिकम ग्रीडी, राइट? एवा राइस खाते ही, वो चावल खाते ही मैं ग्रीडी बन जाता हूं, मैं एकदम से भूखा हो जाता हूं, राइट? सो दिस इज द स्टोरी आई वीव्ड अराउंड इट। नाउ टेल मी, आपने इन सब वर्ड्स को सिर्फ एक बार ही सुना है मेरे से, राइट? नाउ जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि ये 6 में से कितने वर्ड्स आपको भी याद है। अगर 6 के 6 याद है, राइट 6, 5 याद है, राइट 5, 4 याद है, राइट 4। हाउ मेनी वर्ड्स डू यू रिमेंबर? एवराइज का मतलब क्या था, कैंडिड का क्या था, स्क्वांडर क्या था, इंसिपिड क्या था, चोटेल क्या था, इंट्रिकेट क्या था? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी वर्ड्स डू यू रिमेंबर नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम व्हाट्स द रिस्पांस कमिंग? 4 5 6 6 sir. 6, वेरी नाइस गाइस। आपने एक बार ही पढ़ा, सिर्फ हमने आई थिंक पिछले 10 मिनट में ये 6 वर्ड्स हमने सीखे, इंक्लूडिंग द टेक्निक, राइट? एंड वी रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, राइट? हमें, और आई एम श्योर आपको ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड to more words as well, right? And that is where this magic happened. You know, when I take my full day workshops, one of my student became really impressed by this technique, really impressed. What she did, उन्होंने क्या किया, उन्होंने same technique, मैंने तो 6 words बताए, उन्होंने same technique 200 words पे लगा दी। कितने वर्ड्स पे लगा दी? 200 वर्ड्स पे। मतलब आपको वो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? एंड I and that girl, we wrote a book, we co-authored a book that is called Superpower Vocabulary, right? And she has gleefully agreed to give us this 100 words out of those 200. वो 100 देने को तैयार हो गई हैं, and this is the PDF what I'll be giving it to you, right? Now, how many of you want this book? Just write I in the chat box. How many of you want this book? जिससे कि आपको हेल्प होगी, जिससे कि आपको बेटर पता चलेगा कि यार यू नो और ज्यादा 100 वर्ड्स, राइट? 100 वर्ड्स गाइस, 100 वर्ड्स, राइट? सो you'll have to wait till the end probably to get this book, because I'll be having one more free gift to you, okay? So guys, ये था secret of concentration जो हमने यहाँ पे finish किया. Now I'll be for next 20 minutes I'll be talking about some more important aspects in our lives जो कि बहुत जरूरी हो गए हैं, राइट? कितनी बार ऐसा होता है यार कि हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, एकदम से एक नोटिफिकेशन आता है इंसाप पे, और आप देखते हैं नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का आया, आपने देखा, साथ में इंस्टा शुरू हो गया, फेसबुक शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। ऐसा होता है हमारे साथ, राइट? और उसके बाद आप फोन रख देते हैं, आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं, आपके दिमाग में आता है यार उसको कॉल भी तो करना है अपने फ्रेंड को। आपने कॉल किया, 2 मिनट की बात हुई, फोन रखते हुए एकदम से एक और पॉपअप आ गया, फिर से देखने लग गया, आपने रख दिया। एंड नाउ यू सी यार 40 मिनट निकल गए, क्या कर क्या रहा है तू? ऐसा होता है, दिमाग में आती है ना बातें, यू टॉक टू योरसेल्फ, यार कर क्या रहा है भाई, 40 मिनट खराब हो गए, व्हाट आर यू डूइंग, राइट? नाउ होता क्या है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन फोन कॉल का हो, चाहे आपके क्लटर्ड डेस्क का हो, चाहे आपके इंटरनल थॉट्स हो जो आपको परेशान करते हैं, राइट? या फिर ये मोबाइल नोटिफिकेशंस हो, या किसी दोस्त का फोन आ गया, यार मेरे को ये समझा दे। Distractions can come in any form, and you know what happens once you get distracted, एक बार आप ये डिस्ट्रैक्टेड फील कर लेते हो, उसके बाद यू फील गिल्टी, यार मैंने तो 40 मिनट खराब कर दिए यहाँ पे, यार ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही मैं करता रहा या करती रही तो मैं how will I be able to complete the curriculum? मैं किस तरह से I'll be able to score good marks या फिर placement के लिए all those things. वो worry का एक worry शुरू हो जाती है। once you worry ना guys, एक बारी आपके दिमाग में एक worry की layer बन गई तो you feel powerless, you absolutely feel powerless, and once you feel powerless, आपके कंधे झुक जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज खत्म हो जाती है, you feel powerless, you become more vulnerable to distraction. उसके बाद आपका पढ़ने का तो मन करेगा नहीं बिल्कुल भी, और आप और डिस्ट्रैक्शन से you will get more vulnerable to the distractions, और आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है यार, इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। How many of you agree with me? Just write yes or I agree in the chat box कि this is really important loop what we want to get out of, right? This is really important. So let's do one thing. यहाँ पे आपको ना गूगल पे बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी कि डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको वो टेक्निक्स तो ठीक है हम लोग बात करेंगे, लेकिन टेक्निक से भी पहले मैं आपको आपके माइंड को हैक करके यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, और प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक बार अगर आपके यहाँ पे ये जो जैसे लांबा सर वाज आल्सो टेलिंग अस कि 8 ग्राम का भेजा है, राइट? ये इस 8 ग्राम के भेजे को अगर समझ आ गई ना बात, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई विल बी वर्किंग ऑन हियर. लेट्स अंडरस्टैंड डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है डिस्ट्रैक्शन का. डिक्शनरी मीनिंग होता है कि समथिंग दैट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गिविंग फुल अटेंशन टू द टास्क एट हैंड. ये मेरा टास्क एट हैंड है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को काम करना है. समथिंग दैट प्रिवेंट्स मी टू गिविंग फुल अटेंशन टू द टास्क एट हैंड. ध्यान से समझना गाइस, ये लाइफ चेंजिंग डेफिनेशन बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने तो पढ़ना है दिस द टास्क एट हैंड ऑन विच आई वांट टू पे माय फुल अटेंशन, लेकिन समथिंग कुछ तो आया जो मेरे को डिस्टर्ब करके चला गया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. प्रॉब्लम पता है क्या है इस डिक्शनरी मीनिंग के साथ? प्रॉब्लम ये है कि जो पावर है ना वो इस समथिंग के पास है. पावर किसके पास है? इस समथिंग के पास है. पावर किसके पास है? आपके इंटरनल थॉट. ये भी कभी कभी नहीं करता. आप पढ़ने बैठते हैं, आप कहते हो ठीक है सर इसको ऑफ कर दो, ठीक है हो गया, ऑफ कर दिया इसको. आप पढ़ने बैठे, आपके दिमाग में थॉट आ गया, यार ये सब्जेक्ट तो कर लिया, उस सब्जेक्ट का क्या होगा? ये थॉट ने भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको. Something will come, whether a thought would come, whether a call from your friend will come कि चल यार गेड़ी मार के आते हैं, चल यार रात को पार्टी करते हैं, चल ये करते हैं वो करते हैं, किसने लाउड म्यूजिक बजा लिया. Something will come and it will hamper you, it will stop you from giving full attention to the task at hand. क्या करोगे आप? इस डेफिनेशन के साथ प्रॉब्लम गाइस ये है कि आप पावरलेस हैं. पावर आपके हाथ में नहीं है, पावर उस थॉट पे है, पावर उस एक्सटर्नल इवेंट पे है, राइट? यू आर पावरलेस and that is why we get distracted much often. Let me give you a modified definition of this. And guys, this definition itself has actually transformed a lot of lives. This definition itself. Definition समझते हैं क्या है? Now, distraction is not something that prevents me. Distraction is my response to something that prevents me from giving full attention to the task at hand. My response, भाई मेरा response क्या है? For example, मैं पढ़ने बैठा, WhatsApp notification आई, मतलब कि समथिंग हुआ, मेरा रिस्पॉन्स क्या है? एम आई अटेंडिंग इट? नो, राइट? मेरा रिस्पॉन्स क्या है? अब चाबी मेरे हाथ में है, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है. मेरे दिमाग में थॉट आई, मैंने क्या किया? बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आपको कि अगर ये जो थॉट्स आती है इनसे कैसे डील करना, अभी बताऊंगा अगले 2 मिनट में. बट कोई थॉट आई, उससे मैंने डील कर लिया, उससे मैं परेशान नहीं हुआ. बाहर से शोर आ रहा है, आई जस्ट प्लग इन माई ईयरफोन्स, सिर्फ ईयरफोन्स या खाली हेडफोन्स लगा लिए, सो दैट आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड आई एम एबल टू स्टडी. गाइस, मेरा रिस्पॉन्स क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये डेफिनेशन चेंज करते ही पावर जो है ना वो मेरे पास आ जाती है. And as I'm giving this power tip to you, I can feel goosebumps in my body because this is really, really very important. How many of you like this particular definition? Just write wow. Just write wow. Just write wow in the chat box. Right, I'm hoping that many of you are writing that wow thing, right? Guys, Yes, guys, sir. guys, believe me, our all the behaviors, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें करते हैं, हम किस तरह से behave करते हैं, all these things are driven by our beliefs, right? And this is where I want to work on your belief कि भाई distraction is not something external, it is your response to something that tries to stop you from giving full attention to the task at hand. Right? ये आपका response है. And guys, we cannot solve the same problem with the same level of thinking we used to create. Right? We cannot solve the problem with the same level of thinking we used to create it. हमें thinking change करनी पड़ेगी. Right? अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से I'll be telling you some techniques of distraction से किस तरह से हम लोग हटें. Guys, आपके ना एक और मैं बताता हूँ आपका जो mind, आपका जो brain है, it is always wired to protect you from something which is painful. Right? ध्यान रखना इस बात का. तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, आप दिमाग में ये सोच के बैठते हैं कि यार मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा. गाइस, stop doing that and listen to me. Stop doing that, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा, your brain perceives it to be painful. आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो उसको परसीव करता है पेनफुल. यार 4 घंटे कौन पढ़ेगा यार, पागल हो गया है, 6 घंटे कौन पढ़ेगा. यही इंटरनल वॉइसेस आती है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट? सो आपको क्या करना है, एंड वंस आपका ब्रेन थोड़ा सा पीछे हट जाता है, इट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू डिस्ट्रैक्शन. इट एक्चुअली बिकम्स मोर वल्नरेबल. आपको क्या करना है, और साइंस ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया गाइस कि फॉर वन एट अ स्ट्रेच वी कैन गिव आवर फुल फोकस फॉर 30 to 40 minutes. दैट्स इट. मतलब कि शुरू के 30-40 मिनट में हमारा फोकस पूरा होता है, उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ना, तो वो लेस फोकस के साथ कर रहे हैं.
राइट? इट्स जस्ट लाइक कि आप गाड़ी चला रहे हैं, शुरू के 30 मिनट 40 मिनट तो चारों टायर फर्स्ट क्लास चलेंगे, और उसके बाद हर टायर में हवा कम होनी शुरू हो जाएगी। आप इस एनालॉजी को समझिए, राइट? तो आप गाड़ी को उस हिसाब से नहीं चला पाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चंक द बिग थिंग्स, चंक द बिग चैप्टर्स इनटू स्मॉलर वन, राइट? 30 मिनट 40 मिनट का एक चंक बनाइए, एंड देन व्हेन यू टेल योर ब्रेन दैट आई विल बी स्टडीइंग ओनली फॉर 40 मिनट्स, टेकिंग अ 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन स्टडीइंग फॉर 40 मिनट्स, वो जो 40 मिनट वाली चीज है ना, वो आपके, बिलीव मी, ये साइकोलॉजिकल हैक भी है कि योर ब्रेन गेट्स कन्विंस कि हाँ यार ये चीज आसान है, ये चीज हो सकती है, राइट? और उन 30 से 40 मिनट के चंक में आपने जो करना है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि आपने उस 40 मिनट में करना क्या है। और एक और बात बताओ, 30 मिनट 40 मिनट के लिए इसको बंद करना ज्यादा आसान है बजाय के 6-7 घंटे के लिए, राइट? सो यू विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर एडवांटेज एज वेल। एक और चीज, एनर्जी जोन गाइस, आप सबका एक एनर्जी जोन होता है, राइट? एनर्जी जोन इज द टाइम ऑफ द डे जहां पे आपका ना पीक फोकस होता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई होती है, राइट? कुछ बच्चों के लिए वो मॉर्निंग होता है, कुछ के लिए आफ्टरनून, कुछ के लिए नाइट, किसी के लिए भी कुछ भी काम कर सकता है, बट यू आइडेंटिफाई कि यार कब मेरा वो एनर्जी जोन होता है, उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आप करिए, राइट? उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क करिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेक श्योर कि जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री है। नाउ दीज आर समथिंग बेसिक्स, राइट? दीज आर समथिंग बेसिक, सम बेसिक थिंग्स कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा सही होना चाहिए, राइट? इंटरनल एनवायरनमेंट, नाउ दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं और दिमाग में आती है बात, क्या दिमाग में बात आती है कि यार उस थॉट का, उसका क्या हुआ यार, वो मैथ्स का क्या करना है, या दूसरे सब्जेक्ट का क्या करना है, राइट? इन सब चीजों के बारे में बात आती है। तो ऑलवेज डू वन थिंग, एक चीज जरूर करना कि जब भी आप पढ़ने बैठे, अपने साथ में एक स्टिकी नोट जरूर रखना, कोई भी थॉट आती है, राइट इट इन दैट स्टिकी नोट, या एक छोटी डायरी, राइट इन दैट। होता क्या है, जब भी हमारे दिमाग में बात आती है, कोई भी चीज आती है, उसको वो अटेंशन चाहती है, दैट इज सीकिंग योर अटेंशन, राइट? दैट इज सीकिंग योर अटेंशन, एंड वंस यू गिव दैट अटेंशन बाय राइटिंग इट डाउन, वो शांत हो जाती है, वो कहती है ठीक है यार, दैट्स ओके, आई एम ओके। एंड फिर पढ़ने के बाद उसको, उसी स्टिकी पैड को आप देखो, और यू जस्ट कंप्लीट दोज एक्टिविटीज, उसके बाद उनको एड्रेस करो, सो दैट आपके माइंड को ये पता है कि हाँ यार 30 मिनट के बाद ना ये जो एक्टिविटीज है, दीज विल बी एड्रेस्ड। बहुत 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 कारगर उपाय है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, राइट? सो this actually brings me to the next topic, which no, this was the distraction. I think the presentation gab ho gayi thi, right? Yes, sir. I just didn't want to distract you. The presentation is not visible anymore. I just saw that wo niche bar nahi aa raha tha. Anyways, all right, now this brings me to another area of discussion, which is this most incredible gift, ye jo 8 gram ka भेजे ki hum baat कर रहे थे, right? So what does this do? It's not moving. Okay. एक बात समझते हैं, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, दीज आर टू हेमिस्फीयर्स ऑफ आवर ब्रेन, राइट? लेफ्ट इज योर लॉजिकल ब्रेन, योर एनालिटिकल ब्रेन, आपको कुछ पजल सॉल्व, आपको कुछ लॉजिकल चीज करनी है, लॉजिकल रीजनिंग करनी है, कुछ चीज याद करनी है, समझना है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। राइट ब्रेन इज समथिंग विच इज अ जैसे घर में एक शैतान बच्चा होता है, दैट इज योर राइट ब्रेन, राइट? उसको क्या चाहिए? उसको फन चाहिए, उसको मजा चाहिए, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, उसको इमोशन चाहिए, उसको मजा आना चाहिए किसी भी काम में। अब होता क्या है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन तो सेट है यार, वो कहता है कि भाई मेरे को तो लॉजिकल है कि मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। राइट कहता है कि नहीं यार, मेरे को तो मूवी देखनी है क्योंकि इसमें मजा आता है, इसमें क्या आना है, मजा आना है, राइट को मजा चाहिए होता है। लेफ्ट कहता है नीड टू फिनिश द चैप्टर, राइट कहता है नीड टू फिनिश द वेब सीरीज। लेफ्ट कहता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी, राइट कहता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अपडेट द फेसबुक स्टेटस, भाई मैं कहां जाऊंगा, मेरे को भी तो फेसबुक स्टेटस अपडेट करना है, राइट? और इसी बीच में हमारा ये एक कांस्टेंट फाइट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, which does not allows you to study। अब इमेजिन कीजिए कि आपका गोल वहां सामने है, आपका लेफ्ट अलाइंड है कि आपको वहां पे जाना है, राइट कहता है कि नहीं यार मेरे को तो फन चाहिए, मेरे को इमेजिनेशन चाहिए, मेरे को तो मजा चाहिए, राइट? वो यहाँ भाग रहा है। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपके घर में 2 मोटर्स हैं, राइट? एंड यू आर ओनली यूजिंग 1 मोटर टू रन, राइट? और दूसरा भी मोटर जो है वो उल्टी रन कर रही है, आपको वापस लेकर जा रही है। इट्स जस्ट लाइक कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक्सीलेटर पे भी पैर रखा हुआ, ब्रेक पे भी पैर रखा हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू रन इन द फुल स्पीड, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस कि यू नीड टू लर्न होल ब्रेन। आपकी जो लर्निंग है ना, वो होल ब्रेन होनी चाहिए। अब ये करनी कैसे है, दिस इज व्हाट आई टेल इन फुल डिटेल। ये अपने आप में 1-1.5 घंटे का टॉपिक है कि किस तरह से वो सब चीजें करी जाए, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे आपको टिप्स देता हूँ कि सबसे पहला है क्रिएट इंटरेस्ट।
राइट? लेफ्ट हमारे राइट को क्या चाहिए? मजा चाहिए, राइट? लेफ्ट तो ऑलरेडी सेट है, राइट को क्या चाहिए? मजा चाहिए। मजा ले आओ किस तरह से? विजुअलाइजेशन से, इंटरेस्ट क्रिएट करके। तभी वो इंटरेस्ट की बात करी थी कि जब आप इंटरेस्ट ले आते हो तो राइट ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, कहता हाँ अब मजा आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? Always reward yourself. I still remember when I was a kid, my mother used to tell me, और मेरे को डेयरी मिल्क चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त, आज भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो she used to tell me, you know, finish this particular curriculum, finish this syllabus and I'll give you a chocolate. So again, इससे हुआ क्या कि लेफ्ट ब्रेन तो सेट है, राइट ब्रेन को क्या हुआ, बेटा ये जल्दी से कर ले, चॉकलेट मिलेगी, ये जल्दी से कर ले, you will get a reward. And this is not a bad thing, guys. Please, this is not a bad thing. Your right brain wants a reward, wants an appreciation. And you know, द पावर ऑफ एप्रिसिएशन, किसी सीनियर ने किसी बंदे को जिसको आप एडमायर करते हो, एक बारी आपके कंधे पे इस तरह से बोल देना शाबाश बेटा, आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना हो जाता है। एंड यू आपकी छाती चौड़ी हो जाती है एंड यू से कि हाँ यार अब तो मैं कर ही लूंगा इसको, या कर ही लूंगी मैं इसको, राइट? सो दैट इज वेयर दिस रिवॉर्ड सिस्टम प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। सो डू रिवॉर्ड योरसेल्फ गाइस, डू रिवॉर्ड योरसेल्फ। और इसी का एक एनहांस वर्जन है गोल सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये मैं इसका एक गोल सेटिंग मास्टर क्लास इज व्हाट आई टेक, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू शुड बी सेटिंग योर गोल्स, व्हाट शुड बी योर विजन। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो आप कहां जाओगे, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो आप कहां जाओगे, राइट? आप रेलवे स्टेशन पे चले गए, आप किसी भी गाड़ी पे चढ़ जाओ, आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन आप वहां नहीं जाओगे जहां आपको जाना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, राइट? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, गोविंदा वाला डायलॉग हो गया, बट एनीवेज, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, you will never be able to reach there, right? तो गोल सेट होना बहुत जरूरी है। आपके ना वो इमेजेस बनी होनी चाहिए वहां पे। You know, there's a joke also जहां पे फादर अपने बेटे को क्या कहता है कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा हनीमून जो है वो स्विट्जरलैंड से शिमला शिफ्ट हो जाएगा। You know, he is trying to tell him that, you know, पढ़ ले, इसकी वैल्यू इतनी है, otherwise a fruit which you will be getting in the future, ये अच्छे वाला होगा और ये बेकार वाला होगा, तो यही वाला मिलेगा बेटा तेरे को। You know, that is why the message I want to put across here is कि आपके गोल सेट होने चाहिए, आपके राइट ब्रेन को ना पता होना चाहिए कि अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूं तो उसका ये रिवॉर्ड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड देन देयर इज सुपर ब्रेन योगा, यू कैन सर्च द गूगल एज वेल, बट दिस इज व्हाट आई टीच इन माय वन डे सुपर क्लास एज वेल। कि सुपर ब्रेन योगा क्या करता है कि आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए एनेबल कर देता है। वो अगेन कुछ ट्रिगर्स जनरेट होते हैं अंदर और इनको एनेबल कर देता है, राइट? Now the last topic for the day is boring chapters और topics है, जो study hacks की मैंने बात करी थी कि boring chapter से कैसे इजाद पाई जाए, right? So कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जब आपको बोरिंग लगता है, आपने क्या करना है? आपने वो टॉपिक उठाना है, राइट? आपने क्या करना है? आपने ना गूगल करना है उसको, आपने यूट्यूब करना है। अब आज की डेट में देखिए, आपकी जितनी भी हमारी डिस्ट्रैक्शंस है वो सारी विजुअल है, चाहे वो गेम्स हो, राइट? चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, सब कुछ विजुअल है। और सिर्फ हमारी पढ़ाई है जो नॉन विजुअल है, राइट? सो हम तो बोर होंगे ना यार, बच्चा तो बोर हो गई, सो हम उसको भी विजुअल क्यों नहीं बना लेते? बिकॉज दैट इज वेयर आवर ब्रेन कॉम्प्रिहेंड्स द इंफॉर्मेशन रियली वेल, राइट? सो यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाना है, यू नीड टू यूट्यूब इट, स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है? यूट्यूब में देख के ना मूवी की फॉर्म में देख के उसमें मजा भी आता है, राइट? एंड देन यू टेक नोट्स आउट ऑफ दोस। आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप नोट्स भी बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस विजुअल में एंड यू विल बी एनग्रॉस्ड। एंड वंस यू विजुअलाइज दैट इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? दिस इज द लास्ट पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया है कि आप उस सब्जेक्ट को अपने दूसरे दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो। आई एम श्योर कि अगर बोरिंग या मुश्किल आई एम श्योर अगर वो बोरिंग या मुश्किल आपको लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी लग रहा होगा, राइट? या कुछ और भी दोस्त होंगे जिनको मुश्किल लगता होगा। यू टीच देम दैट टॉपिक, यू बिकम एन एक्सपर्ट एंड यू बिकम पॉपुलर एट द कॉलेज, व्हाई नॉट, राइट? दिस इज अ श्योर विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस कि इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है यार, आपको सैंपल पेपर्स की हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पे। आपको अगर बोरिंग चैप्टर लग रहा है और यूट्यूब भी सपोज करिए अवेलेबल नहीं है आपके पास, आप क्या करिए, आप एक बार चैप्टर ना पढ़ लीजिए, बस जस्ट स्किम थ्रू इट, एक बारी बस पढ़ लिया, रीडिंग होगी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फिर उस चैप्टर के रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं, राइट, उनको पढ़िए कि भाई इस चैप्टर में से पूछा क्या जाता है, बिकॉज यू आर जज्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, राइट? कभी एग्जाम में ये बोला गया कि सीएससी की बुक में से चैप्टर नंबर 5 पूरा क्वेश्चन पेपर में, पूरा आंसर पेपर में लिख दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट? दे आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? एंड योर एबिलिटी टू आंसर दोस क्वेश्चंस विल इवेंचुअली डिसाइड हाउ गुड यू स्कोर, राइट? तो आपने क्या करना है, अपने चैप्टर को एक स्किमिंग होती है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया एक बारी, फिर आपने क्या किया, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है? अब आपको ना कहीं आइडिया हो गया, हाँ यार ये चैप्टर टॉक्स अबाउट समथिंग ऑन दीज लाइंस, क्वेश्चंस ये है।
अब आप उस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए ढंग से, राइट। नाउ अब जब आप वो चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, वो लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी दिमाग में विद दैट क्वेश्चंस, विद दोस क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन था, अरे हाँ यार, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बनता है, जैसे हम अनसीन पैसेजेस के साथ किया करते थे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कारगर सिद्ध होती है इसमें, व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। व्हाई? क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, अरे यार इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। एंड इट एक्चुअली, जब ये क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है ना, इट इंक्रीजेस योर ब्रेन एक्टिविटी इन हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो एरिया होता है जो लर्निंग के साथ रिलेटेड होता है, राइट। इट एक्चुअली इंक्रीजेस दैट एक्टिविटी। बट एक और चीज होती है यहाँ पे कि जब आप क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, उसको आपने आंसर कर दिया, तो यू फील गुड, there is a feel good factor। और आपके दिमाग में ना there are some neurotransmitters, मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ बट this is important, आपके ब्रेन में कुछ neurotransmitters जनरेट होते हैं, जैसे डोपामाइन। अब डोपामाइन इज अ फील गुड फैक्टर न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। वो आपको फील गुड करवाता है कि यार वाओ, मजा आ गया, मैंने तो ये अकम्प्लिश कर लिया। कभी कभी होता होगा आपके साथ भी कि कभी कोई एक टास्क विच इज वेरी वेल डन फ्रॉम योर साइड, यू गेट दैट सैटिस्फैक्शन इनसाइड, राइट। वो जो एक फील गुड फीलिंग आती है, दैट इज नथिंग बट डोपामिन रिलीज इन योर ब्रेन, राइट। सो दैट इज हाउ क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग के बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बेसिक फंडामेंटल तो यही है यार कि आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाएंगे, क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और योर एबिलिटी टू आंसर दोस क्वेश्चंस विल डिसाइड हाउ गुड यू आर एट योर ग्रेड्स, राइट। सो दैट इज वेयर द क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग, ये 2 हैक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, which are really important, right? And I'll be just talking about my book here, which tells you what kind of a learner you are. This is an Amazon bestseller. It has actually become Amazon #1 bestseller in just couple of months of launching. It is really loved by students a lot. और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा। और अगर आपको इसका एक फ्री चैप्टर चाहिए होगा, दैट इज व्हाट आई विल बी गिविंग इट टू यू फ्री टुडे एज वेल, राइट। सो कितने बच्चों को एक गिफ्ट चाहिए, ये वाला और वो वोकैबुलरी वाला? आई एम श्योर कि आप लोगों ने सबने हाँ बोला है यहाँ पे, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, नाउ आई विल बी स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर, एंड व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज, आपने जस्ट अ मिनट, I cannot see the, okay, I can see the chat box. Can you see my hi over here? Yes, you can see. Okay. All right. So what you need to do is you need to visit Facebook, and you need to visit Instagram right now, right? I've given the link in the chat box. Go to Insta, follow करिए और latest जो भी post है उस पे comment करिए super learner, right? अगर आप इंस्टा पे नहीं है, go to Facebook and do the same thing. The reason why I'm saying you, the reason why I'm telling you to connect with me on Facebook, Insta, etc., because I keep on posting a lot of relevant content for you guys on the social media, and I don't want you guys to miss it, right? तो आपको chat box में link मिला होगा इंस्टा का, वहां पे जाके फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी आपको वो सारे आगे फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगे, राइट। डू फॉलो, do comment super learner. If you're not on Insta, do that on Facebook, right? So let's take out 3 minutes, next 3 minutes to do this activity only, right? And in the meanwhile, मैं अपना वीडियो 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ, just need to have some water. All right, thank you. All right, I'm back here, guys. So I hope you have actually started doing that. Can see some notifications as well. Very nice. Okay, so that brings me to the end of this chapter. And in case this chapter, this particular webinar, and in case you want to
you want to, further get in touch with me, these are my credentials on the screen. You can see these are my credentials. You can see the screen, right? You can see on the screen that these are my credentials. You can okay, you can get in touch with me here as well. So Gurleen ma'am, that brings me to the end of this session. If we can have some feedback around the session would be good. And let me share my credentials here on the chat as well. Sure, sir. Should we take some questions if the students Yes, like to definitely. ask? Why not? Why Okay, not? so all the participants, I request you to please write the questions in the chat box. If anybody has any questions. Well, I see somebody saying that I have a question. So Yes, I can also see that. Yeah. yeah, Saurav Sharma. So please post the question, or you can unmute yourself if you're able to, and you can ask personally, whichever way. Okay, so one question is how to buy this book. So I guess from Amazon. Yes, it is there on Amazon, and I would request you guys to opt for the Kindle edition. Couple of reasons for that. Number one, it is cheaper than the paperback. Number one. Number two, that it will be always handy in your mobile or in your laptop, etc. So if you're traveling, you can read that as well. So Kindle पे उस book को आप लाइए तो that will be better. It is cheaper on Kindle as well. So that would be my suggestion. Right, I can see one more question. How can we improve the visualization or imagination process, right? So, you need to practice it, right? Now, brain is just like another muscle of yours, right? If you ask me, कि sir, मेरे को 100 push-ups लगाने हैं तो मैं कैसे लगाऊं? Now, my answer would be to start with 5. To start with 5 and then gradually increase to 10 and all those things, right? So if you want to improve your visualization, which is a core to your success, I would say, right? Or visualizations bhi guys 2-3 तरीकों की होती हैं. One is which helps you in learning the stuff जो हमने आज discuss किया. Then there are some visualization जो goal setting में मैं आपको करवाता हूँ, which I tell you to visualize your future, right? To build those images as to what you are achieving in future and what you are doing and what all appreciations you are getting and all those stuff. So there are 2 or 3 types of visualizations which you do. तो visualization को improve करने का best step यही है कि आपको जितनी भी information आप पढ़ रहे हैं, just try to build some funny pictures, some funny cartoons, some funny images around it that will actually help you. That will help you. So he says that he closes his eyes, so he's not able to imagine anything. So, yeah. So that is why, that is where, I try to do push-ups, but मैं 2 के बाद ही गिर जाता हूँ. That is where you need to build that inner resilience. Number one, जितना आप एक काम करिए, the best way would be the PDF book what you'll be getting today, right? Of 100 words. ठीक है, उन 100 words को क्योंकि उसके अंदर विजुअलाइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, उनको that will be an aid to you, right? That will be an aid to you, right? उनको देख के, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन दिया हुआ है, उसको आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए. इससे होगा क्या, your brain will get into a habit of visualizing stuff, right? अभी क्या है कि वो हैबिट नहीं है, वो हैबिट अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो हैबिट तभी जनरेट होगी जब आप चीजों को करना शुरू करेंगे. और 100 वर्ड्स के साथ फायदा ये है कि मैंने उसको विजुअलाइज करना कैसे है वो मैंने बताया हुआ है उस पीडीएफ में. Right, that is how it will help you. Sir, another is Archana. She says that the chapter is quite a long chapter. So if I start or try to visualize each and everything, I won't be able to complete it. Okay. Guys, believe me, this is something which will help you a long way, right? Visualization से अभी थोड़ा सा time ज़्यादा लग सकता है. I agree. I'm totally agreeing with you, right? But you know what? आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू जाएगा, दैट विल बी नॉट अ क्लटर्ड इंफॉर्मेशन, दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, राइट? दैट विल बी एन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक इंफॉर्मेशन जाएगा. आई विल टेल यू, आप जितना टाइम अभी लगाएंगे विजुअलाइज करने में, उससे ज्यादा टाइम आप बचा रहे होंगे एंड टुवर्ड्स द एंड या टुवर्ड्स द एग्जाम टाइम
उस चीज को रिवाइज करने में, क्योंकि आपका उतना ही टाइम रिवीजन में बचेगा. यू नो व्हाई? बिकॉज इट विल बी ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर न्यूरल पाथवेज, जिसको हम कहते हैं, जो मेमोरी वाले होते हैं. आई ऑलवेज टेल द गाइस कि जितना अच्छे से आप मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लेते हैं, उतना ही बेटर आपको बेनिफिट होता है टुवर्ड्स द एंड या इन द एग्जाम टाइम उसको वापस रिकॉल करने में. क्योंकि रजिस्टर करना एक चीज होती है, रिकॉल भी तो करना है ना उसको. तो रिकॉल करने के बाद वो जो रिवीजन का प्रोसेस है, वहां पे आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत बचेगा वहां पे टाइम. राइट. So Harshpreet is asking any experiences with meditation, and another one says how to create interest in studies. So I guess so Sangam, we had the entire 15 minutes talking about how to create interest in the studies. You can add 6 modalities. जो 6 modalities की हमने बात करी थी, कलर था, पिक्चर थी, साउंड था, इमोशन था, आप खुद थे, या समथिंग बिजार था, वो उस इंफॉर्मेशन में ऐड करिए. इंफॉर्मेशन को जितना आप फनी वे में कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा बेटर वो इंटरेस्ट आपका अपने आप जनरेट होगा. I've seen, you know, people, I'm from a science background, but then, you know, I got a chance to interact with commerce students as well, and there was some couple of teachers जो इस तरह से उनको अकाउंट समझाते थे, बैलेंस शीट समझाते थे, which is such a boring topic, believe me, और वो इतने मजे से सिखाते थे. विजुअलाइज करो, ये एंट्री यहाँ से उड़ के आ रही है, यहाँ पे एयर होस्टेस ने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया. यू नो दैट पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन प्रोसेस वाज सो इंक्लूडिंग ओवर देयर कि इवन मेरे को भी समझ में आ गया, हाँ यार ये क्या पढ़ा रहे हैं. Right, so you'll have to make that interesting by adding those modalities. That is the thing over here. Okay, thank you so much, sir. I guess we'll move on now. Actually, I guess the students, they need to practice it, and then maybe we call you again for another session, and then they'll be in a better position to share their experiences with you. That's right. Because That's right. yeah, right, because I feel till the time you don't practice, you won't be able to actually analyze and, you know, say something about it. So thank you Sure. so much. And it is not just the students. I completely enjoyed it, and I guess I'm going to use it, and maybe for my kids as well. So thank you so much for such a interesting way of learning new things. And now I would request our head of department, Dr. Kavalveer Singh Teensah, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Okay, thank you, Professor Gurleen Sidhu. My voice is audible? Yes, it is. Okay, good afternoon, everyone. Today we had a very special motivational talk by Dr. Bhaumik San, and I think audience is very much pleased with all the information given regarding motivation and updating, boosting memory skills. Okay, it was really wonderful. It was the first of kind and a rare webinar I have found whatsoever I have attended till now. Okay, it was the finest of the all. I would like to thank Mr. Bhaumik San for motivating and thrilling everyone with this information and motivating everyone. In this, we have got near about 250 registrations. And but I really regret all the audience members who were not able to join today, because we have found yesterday only that the policy regarding the same has been changed by the Google. Now, not more than 100 participants can join in a webinar in the Google Meet. So that was a really issue which we were not able to resolve. And I really regret all those who were not able to attend, but I have found many participants who were eagerly waiting in the queue, and whensoever anyone was having any network issue or was leaving due to any other issue, and then other participant was able to join soon. So this webinar organized by Computer Science and Engineering Department of Baba Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. It is part of this BBS BC CSE department webinar series, in which we have having many international talks related with academicians and researchers. And we started this YouTube channel on 29th July, and till now we have got near about 400
25 subscribers till now. I request everyone to join same so that you can have event related information in future also. You'll be getting that by email. Attendees and the students also from our college and other schools and colleges I am finding in the chat participant list. We have got many student participants also. I think they have been very much pleased about the answers as responses as given by Mr. Bhawmik, and naturally clearing every one of the doubts related with their study, future, goals, family. And it was very interesting, especially because we have found many case studies and examples which have been correlated by Mr. Bhawmik for ensuring that the audience has been left spellbound with this great talk. This is very much required in today's time, because the troubled times of COVID is still not over, and we may have to live with this in the near future also. And hopefully the vaccine comes soon, and we all be having the good news, which all companies they are trying. Improving the memory skills and boosting the sharpening the mind techniques, because Mr. Bhawmik is a NLP practitioner also, and he has suggested many ways, and we have found many questions in the chat box which have been replied very firmly by Mr. Bhawmik. So as all the requirements, whatever was needed to be answered, it was very, I would say, it was a great talk regarding everything. The audience really, it has been left spellbound and asking for more. We have got 2-3 calls related with that to organize more such informative talks in future also. And I assure everyone that there will be many more in such lines. I appreciate the efforts of Professor Gurleen Sidhu, Assistant Professor, CSE Department, who is always willing to coordinate and do anything, whatever is required from for the CSE Department and for the college. Feedback form related, I have put in the chat box also. Please, I request everyone, those who have maybe joining late, please fill the feedback form, and whosoever will be filling the feedback form, they will be awarded with very nicely made e-certificates of this webinar. Okay, and that is, I think, a memory which everyone like to keep. So I would like to thank Principal Sir, Major General Dr. G.S. Lamba, and Dean Student Affairs, Dr. Amanpreet Singh Sethi, for sharing their views and addressing the audience. I would request Mr. Bhawmik San to keep in touch in future also, and hopefully this COVID time is over, and then we'll be having a more interesting session, and I would like to, I have asked Mr. Bhawmik to that we will be calling him in the college also, and it will be one-to-one interaction with the audience also in the college campus. So stay healthy, stay blessed, and hopefully these troubled times will be over soon, but we have to keep ourselves motivated and not think of any situation where we think that we can't overcome it. And we'll have that time again where for the students especially, that you'll be becoming part of the college campus and again enjoying those great times. So thanks one and all, and I wish all the best to all of you in the times ahead. Be positive and be optimistic. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. And looking forward to more such sessions. I would now announce that this is officially closed. So thanks a lot, Mr. Sen, once again, and Thank you very hope much. to see you soon. Sure.
Sure. Thank you very much for organizing this. Thank you so much, Dr. Kawalveer. Thank you so much, ma'am, Gurleen ma'am, for organizing it during the webinar so beautifully. Right. Sincere respect to Dr. Lamba and Mr. Amanpreet Singh. I'm sorry if I'm missing out on some designations here, so I'm really sorry about that. But then yes, a real vote of thanks to all of you. And yes, I do look forward after the COVID times to be there in the college and interacting one-to-one with students, for sure. So everybody is asking about free gift of your PDF that you told. Yes, yes. So Insta पे जितने भी बच्चों ने like किया है, follow किया है, Facebook पे like follow किया है, I'll be posting a link on that from where they can get that particular book. Okay, thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay, thank you, Mr. Bhaumik.